Hello everyone. Let's discuss the third exercise from the practice sheets on ratio, proportion and variation. The first question says ratio of ages of two persons A and B is 2 is to 3 and that of B and C is 4 is to 5. If the average age of all the three is 35 years, what is B's age? ये तो straightforward compounding का question है. So I already know ए और बी के एजेस का रेशियो 2:3 है, बी और सी के एजेस का रेशियो 4:5 है, बी का कॉलम कंप्लीट है, सो आई यूज द वैल्यूज ऑफ बी. 2 टाइम्स 4 8, 3 टाइम्स 4 12, 3 टाइम्स 5 15. ए बी और सी के एजेस का रेशियो हो गया 8:12:15. मुझे बी के एज के बारे में पूछा गया है, सो बीज एज विल बी 12 अपॉन 8 plus 12 20 plus 15 35, 12 upon 35 of total. Now the only mistake that you could make here is you do 12 upon 35 of 35 years. Remember 35 is not the sum of ages here, 35 is the average of ages. तो तीन लोगों की एवरेज एज अगर 35 है तो उनकी टोटल एज नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई करने पर sum of observations is equal to 105 होना चाहिए. और if you didn't understand what I am doing here, I'll put it like this. A, B और C के ages का average दिया है 35. That means A, B और C के ages का sum होना चाहिए 105. तो total age कितना दिया है 105. So 12 upon 35 of 105, that is 36 years should be B's age. Answer option B, the correct answer. Next question. Two friends A and B have a certain amount of money in the ratio 2:3. If A gives 20 rupees to B, the ratio will become 7:13. If B gives 20 rupees to A, what will be the ratio of amounts with A and B? एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका क्या है भाई, ए बी के पास जो अमाउंट्स है उनका रेशियो है 2:3, मतलब नंबर्स हो गए 2K एंड 3K. इफ ए गिव्स 20 रुपीज टू बी, ए अगर बी को 20 रुपीज देगा तो इसके पास हो जाएगा 3K प्लस 20 और इसके पास हो जाएगा 2K माइनस 20. और इसका रेशियो हमको दिया हुआ है कितना 7:13. सो आई गो 2K माइनस 20 अपॉन 3K plus 20 is equal to 7 upon 13 and I cross multiply, so I get 13 times 2 26 minus 21, 5K equals 20 times 7 plus 20 times 13, that's 400, and therefore K is equal to 80. K is equal to 80, which means the amounts with A and B should be 2 into 80 160 and 3 into 80 240. Now if B gives 20 rupees to A, that means this person will have 180 and this person will have 220. Then the ratio of amounts with them will be 9:11. So one short way of solving this question would have been this. On the other hand, you could also solve it as जो अमाउंट उन दोनों के पास टोटल है वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो लोग तो सिर्फ आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं. तो यहाँ रेशियो का जो सम है 2 + 3 5 और यहाँ रेशियो का जो सम है 7 + 13 20, टोटल सेम ही होना चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज 5, आई टेक इट एज 20. 5 और 20 का एलसीएम. सो आई से ए और बी के पास जो अमाउंट्स हैं वो 20K है. 20 being the LCM of 2 plus 3 5 and 7 plus 13 20. So 20 is the LCM of 5 and 20, that's why I'm taking 20K as the total, right? Once I understand that A और B के पास शुरू में जो अमाउंट्स थे वो 2:3 के रेशियो में थे, मतलब 8K और 12K. और जब A ने 20 रुपीज B को दिए तो 7K और 13K हो गया. इसका मतलब ए ने अपने पास से एक के रुपीज दिए हैं, तभी तो ये 12 से 13 हो गया और 8 से 7 हो गया. सो ए ने के रुपीज दिए होंगे, के इज इक्वल टू 20. सो आई सिंपली थिंक के इज इक्वल टू 20. तो अब की बार जब बी ए को 20 रुपीज देगा, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ दिस, if B would have given K rupees to A, then this guy would have 9 and this guy would have 11. So answer 9:11, straightforward, finished. That's the answer. Whichever way suits you, you can take it up. Next question. Again, a very simple question. Depends upon which method you find yourself comfortable in.
सो देर आर टू वेज. एक जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कई बार कि जब बहुत सारे इक्वल टूज दिए हों, सो यू जस्ट अज्यूम ऑल ऑफ देम टू बी इक्वल टू अनदर नंबर फ्रॉम योर ओन साइड. सो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक is equal to k. So a upon 3 is equal to k means a is equal to 3k, b is equal to 4k, and c is equal to 5k. So I put a, b and c in this equation. I get 3k plus 2 into 4k minus 3 into 5k whole over p equals k. Now 3k plus 8k, that's 11k, minus 15k minus 4k over k is equal to p. I've cross multiplied p and k, so I get p is equal to minus 4, and that's the answer. One way to solve this question. Another way to solve this question was, if you recall, you studied that if a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f and so on, then all these ratios are also equal to sum of numerators upon sum of denominators wala ratio, a plus c plus e upon b plus d plus f, provided that the denominator is not equal to 0, as long as b plus d plus f is not equal to 0. So here also it's an application of the same property. You may say, how? It's not a plus b plus c on the numerator. Well, we do it this way. A upon 3 is equal to 2b upon 8 is equal to 3c upon 15. I can write it like that, right? B upon 4 is equal to 2b upon 8. Same thing. So now this ratio should also be equal to a plus 2b minus 3c upon 8 plus 12 minus 15, provided that the denominator is not equal to 0. And the denominator is not equal to 0. It features to be a plus 2b minus 3c upon minus 4. So simply you can take a look at p being equal to minus 4 and the answer option D being the correct answer. Next question. In a company, the salary of an employee consists of two parts, a fixed part and a variable part. The variable part is directly proportional to her experience. ठीक है? The salary of a fresher, that is zero experience. अच्छा, zero experience होगा तो variable part भी zero हो जाएगा. मतलब fixed part is 20,000 per month. And the salary of a person who has an experience of 2 years is 50,000. So fresher का salary is equal to fixed part plus variable part. सभी का salary is equal to fixed part plus variable part. Fresher के केस में हमको क्या पता है, salary 20,000 है, variable part जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के, सो v इज इक्वल टू के एन. पर नंबर ऑफ ईयर्स तो इसका जीरो है, तो v इज इक्वल टू के इंटू जीरो और v इज इक्वल टू जीरो. तो फ्रेशर के केस में वेरिएबल पार्ट जीरो होगा, विच इज व्हाट वी हैड ऑलरेडी कंक्लूडेड, बट दिस इज अ प्रूफ ऑफ दैट. सो फिक्स्ड पार्ट इज इक्वल टू क्या आ गया, 20,000. तो अच्छा, अब किसी की भी सैलरी निकालते समय 20,000 प्लस वेरिएबल पार्ट ऐसा कर सकता हूँ. 20,000 प्लस वेरिएबल पार्ट जो कि किसके बराबर है, के एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो आई विल राइट इट एज के एन. आई एम सो सॉरी, नॉट के प्लस एन, के एन. नाउ एक ऐसा बंदा जिसका एक्सपीरियंस 2 साल का है, उसका सैलरी 50,000 है. तो 2 साल का एक्सपीरियंस मतलब 20,000 प्लस k into 2 is equal to 50,000. So that makes it 50,000 minus 20,000, 30,000 whole divided by 2, k is equal to 15,000. So at this point, I can rewrite the entire formula for salary, and the formula for salary calculation will be, salary is calculated as fixed part 20,000 plus number of years into 15,000. What will be the salary of a person with 5 years experience? ये सॉल्व करने के लिए 5 years experience पुट कर देते हैं यहाँ पर 20,000 plus 15,000 into 5, that's 75,000 plus 20,000, 95,000. Do I have an answer option like that?
Yes, answer option D, that's the correct answer. Next question. What is the minimum experience required to draw a salary of 1,40,000? So from the previous question, I'll just take the formula that we had calculated. Salary is equal to 20,000 plus 15,000 into n. Here I put कि salary कितनी चाहिए 1,40,000 is equal to 20,000 plus 15,000 n. So that's 1,20,000 on the left divided by 15,000, n is equal to 8. Answer option B, 8 years. At this point I find it prudent to advise you कि normally सभी students ऐसे ही करते हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी. इन what sense? आप इसको orally भी कर सकते थे और आप numbers को thousands में मत सोचा करो. हर जगह 000 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है because it as a factor it can cancel out. So I just think 20 grand per month फ्रेशर को मिल रहा है और एक्सपीरियंस पर्सन जो 2 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है उसको 50,000 मिल रहा है. मतलब कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 30,000. तो फिर 2 साल के हिसाब से 30,000 मतलब 1 साल के हिसाब से 15,000. तो अगर कोई 5 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो उसको 20,000 प्लस 5 साल का 15,000, 15 5 75 20 95 पिछले क्वेश्चन का आंसर. और इस केस में व्हाट इज द मिनिमम एक्सपीरियंस टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 1,40,000? तो 20,000 तो फिक्स्ड है, तो वेरिएबल पार्ट कितना हो गया 1,20,000, तभी टोटल 1,40,000 होगा. 1,20,000 15,000 पर ईयर के हिसाब से 15 इंटू वॉट इज 120. सो एसेंशियली आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 15 की टेबल आपको याद है कि नहीं. 15 की टेबल में 120 कहाँ आता है 8 वाली पोजीशन पे आता है. फिनिश्ड, दैट्स योर आंसर. The present ages of A and B are in the ratio 2:3 and the ages of A and C are in the ratio 3:4. Compounding वाला केस हो गया ये तो. A, B, C 2:3 3:4. A वाली वैल्यूज पता है, A वैल्यूज पुट करूंगा 2 3 6 3 3 is 9 2 4 is 8 6 9 8 एजेस का रेशियो. The sum of present ages of A, B and C is 92. ठीक है. How many years will it take B and C to get their ages in the ratio 10:9? मुझे B और C के एजेस के बारे में बात करनी है, राइट. तो B और C की एजेस देख लेता हूँ कि क्या है अभी फिलहाल. B की एज होगी 9/6 + 9 15 + 8 23. 9/23 of 92. 23 cancels 92 4 times. 9 4 36. 9 4 36 8 4 32. तो इनकी एजेस का रेशियो क्या हो गया 9:8 और इनकी एक्चुअल एजेस क्या हो गई 36:32. हमको क्या पूछा है हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक बी एंड सी. अभी कितने साल लगेंगे बी और सी को उनके एजेस का रेशियो 10:9 होने के लिए. लेट अस से के साल लगेंगे. तो बी के एज और सी के एज के साल बाद क्या हो जाएगा 36 + के 32 + के. और ये रेशियो हमको क्या चाहिए 10:9. क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व दिस, आई एम श्योर यू कैन. आई विल जस्ट पुट इट एज the solution will come out to be k is equal to 4. तो सही आंसर क्या हो गया आंसर ऑप्शन बी k is equal to 4. अगेन कॉमन डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस आ गए हैं. The salary of an employee is made up of the basic salary as well as incentives, similar to the previous case. As an incentive, an employee gets rupees 120 for attending a call. अच्छा यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया, एक कॉल के लिए 120 रुपए मिलते हैं. An employee शैलजा who attended 50 calls in a month, या 50 कॉल्स के हिसाब से पर कॉल 120 के हिसाब से उसको कितना इंसेंटिव मिला होगा 6,000 रुपए. शी रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 12,000. शी रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 12,000. इसमें इंसेंटिव 6,000 है तो फिक्स सैलरी कितनी होनी चाहिए बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए 6,000. व्हाट इज हर बेसिक सैलरी. खत्म हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेटा तो सेम है तो हमको क्या पता है शैलजा का बेसिक सैलरी कितना है 6,000. सावित्री अटेंड्स ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉल्स अटेंडेड बाय गायत्री. अच्छा अब दूसरे लोग हैं सावित्री गायत्री. गायत्री जितने कॉल्स अटेंड करती है उसका डबल सावित्री अटेंड करती है. द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज इज 3:2. रेशियो ऑफ सैलरीज 3:2 क्यों होगी. रेशियो ऑफ सैलरीज 2:1 क्यों नहीं है. क्योंकि ये तो इंसेंटिव वाला पार्ट है ना, इसमें बेसिक ऐड होगा अभी, पर इनका बेसिक कितना है ये तो मुझे पता नहीं है. व्हाट इज सावित्री सैलरी ये तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इन लोगों का बेसिक नहीं पता. नहीं, क्या लिखा है अज्यूम दैट द बेसिक सैलरी ऑफ सावित्री एंड गायत्री इज द सेम एज शैलजा's बेसिक सैलरी. शैलजा का बेसिक सैलरी कितना था 6,000.
तो बेसिक प्लस इंसेंटिव, सावित्री का सैलरी कितना हो गया 6000 प्लस 2x, और बेसिक प्लस इंसेंटिव इसका सैलरी कितना हो गया 6000 प्लस x, इसका रेशियो 3:2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 6000। तो हमको क्या पूछा है, सावित्री सैलरी, बेसिक सैलरी नहीं, सावित्री टोटल सैलरी। तो सावित्री का सैलरी कितना होगा, सावित्री को इंसेंटिव मिला 2x यानी कि 12000, और बेसिक सैलरी उसकी कितनी है 6000, तो टोटल कितना हो गया 18000। सावित्री का सैलरी 18000। आंसर ऑप्शन डी, दैट्स द करेक्ट आंसर। Three friends A, B and C had to distribute a certain money in the ratio 1/2, 1/3, 1/4। हमें ऑलरेडी पता है कि हम 1/2, 1/3, 1/4 को ज्यादा आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या है 12, सो मल्टीप्लाई 12 इन ईच क्वांटिटी। सो 12 का हाफ 6, 12 का थर्ड 4, 12 का फोर्थ पार्ट 3। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था 6:4:3, बट दे डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन द रेशियो 2:3:4। ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं। एज अ रिजल्ट ए गॉट 560 रुपीज लेस। तो ए को 6:4:3, एबीसी को 6:4:3 के रेशियो में बांटना था, पर बांट किस रेशियो में दिया 2:3:4। ए को कितना मिलना चाहिए था 6/6 + 4 + 3, यानी कि 6/13 ऑफ टोटल मिलना चाहिए था, पर ए को मिला कितना 2/2 + 3 + 4, यानी कि 2/9 ऑफ टोटल। तो इनका जो डिफरेंस था वो 560 था। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मच मोर मनी डिड सी गेट देन ही शुड हैव ओरिजिनली। तो इसको सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी, सी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो आई जस्ट क्विकली सॉल्व इट फॉर यू। द आंसर दैट यू शुड गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन शुड बी टी इज इक्वल टू 2340। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे टी इज इक्वल टू 2340 आएगा। अब हमको क्या पूछा है, सी हाउ मच मोर मनी डिड सी गेट देन ही शुड हैव। तो सी को कितना मिलना चाहिए था 3/13, पर उसको कितना मिल गया 4/9। तो डिफरेंस कितना है अमाउंट्स का 4/9 टी माइनस 3/13 टी, दैट इज 25/117 ऑफ टोटल, इतना। पर टोटल तो हम निकाल के बैठे हैं 2340, सो 25/117 ऑफ 2340। When you solve this, you should get 500, and that's the answer. Can I see an answer option like that? Yes, answer option C is the correct answer. This is one way to solve such questions. We have been solving such questions many times now. Now, if you are comfortable with this method, I'll tell you another method of going about the same question. बहुत आसान तरीका है। मैं किस assumption पर चलूंगा कि जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना था वो तो सेम था, जो कि दिया ही हुआ था कि सेम अमाउंट हमने 1/2:1/3:1/4 के रेशियो के बजाय 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड कर लिया। तो एक बात बहुत क्लियर है कि टोटल अमाउंट सेम था। अच्छा, ए बी सी के बीच में जो टोटल अमाउंट था उसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 6:4:3 के रेशियो में, मतलब टोटल 13, जबकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2:3:4 के रेशियो में, मतलब टोटल 9। यहाँ पर तो 13 पार्ट्स और 9 पार्ट्स जिस चीज के हो रहे हैं वो तो सेम होना चाहिए। सो आई विल टेक अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 13 एज वेल एज 9, LCM. So I'll take 117. So if the total is 117, it becomes very easy. 9 parts 117 मतलब 1 part 13, मतलब 13 2s 26, 13 3s 39, 13 4s 52। इस रेशियो में हमने बांट दिया, जबकि हमें बांटना किस रेशियो में था 13 parts 117 मतलब 1 part 9, तो 6 9s 54, 4 9s 36 एंड 3 9s 27। हमने इस रेशियो में बांटना चाहिए था, पर हमने 26 39 52 ऐसे बांट दिया। तो अब what I'm doing, I've brought all the ratios with the same multiplication factor. So I can go 54k, 36k, 27k, 117k में से बांटना चाहिए था, 26k, 39k, 52k बांट दिया 117k में से। तो दिख रहा है ना कि a का शेयर जो था वो हमने कितना कम कर दिया 28k कम कर दिया, जबकि हमको पता है कि a को कितना कम मिला
560, इसका मतलब k इज इक्वल टू 20, k इज इक्वल टू 20। मुझे क्या पूछा है, c को कितना ज्यादा मिल गया, तो 27k के बजाय c को क्या मिल गया, 52k, इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा कितना मिला, 25k, 500, फिनिश्ड, दैट फास्ट। पर इसके लिए थोड़ा टेबल्स वगैरह, एलसीएम कैलकुलेशन वगैरह अगर आप जल्दी कर सको तो इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये वाला पूरा पार्ट ओरली कर सकते हो, और एक्चुअली इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कैलकुलेशन आपको करना पड़ता, वो था 25 upon 28 of 560. Think about why I'm saying that. You should be able to understand the answer should be 500 straight away. I hope you're able to follow that. A, B and C agree to receive profit from their business, each in proportion to his investment. ये ठीक है. B and C put back into the business their share of the profit each year. ठीक है. But A does not. Initially, A invests 20,000, B 10,000, C 5,000. The profit for the first year is 14,000 and for the second year is 20,500. Calculate the ratio of money each has during the third year. ठीक है. तो I'll just straight away start A, B, C. फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट करते समय A ने इन्वेस्ट किया 20,000, B ने इन्वेस्ट किया 10,000 और C ने इन्वेस्ट किया 5,000। मतलब इनके इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो क्या था, क्विक चेक, 4:2:1। तो जो प्रॉफिट आएगा वो 4:2:1 के रेशियो में बटेगा। 4:2:1 के रेशियो में कितना प्रॉफिट आया, 14,000। तो मैं 14,000 को डिवाइड कर दूंगा, 4/7 ऑफ 14,000, 2/7 of 14,000 and 1/7 of 14,000. So 1/7 of 14,000 is 2,000, which means इसने 2,000 रुपीज इसको प्रॉफिट मिला, इसको मिला 4,000 और इसको मिला 8,000। पर ये 8,000 ये घर लेके चला गया, जबकि इन लोगों ने ये पैसा वापस री इन्वेस्ट कर दिया। तो अगले साल इनके इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो क्या था, ये देखो मैं, 20,000 ही 20,000 रहा ए का, बी का इन्वेस्टमेंट 10,000 प्लस 4,000 14,000 हो गया, और सी का इन्वेस्टमेंट 5,000 प्लस 2,000 यानी कि 7,000 हो गया। अब इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 20,000 is to 14,000 is to 7,000 is 20 is to 14 is to 7, राइट? ओके, तो अब इसमें 20/41 शेयर इसका रहेगा, 14/41 इसका और 7/41 शेयर टोटल प्रॉफिट में से इसका रहेगा। अगले साल टोटल प्रॉफिट कितना है, 20,500। तो 20,500 में से so when you calculate this you should get this as 3,500. You should get this as 7,000 and you would get this as 10,000. So तीसरे साल उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, लेट्स चेक। ये तो ये 10,000 रुपए ए तो घर लेके चला गया, तो ए का इन्वेस्टमेंट तो 20,000 रुपए ही रहा, पर बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 21,000, क्योंकि उसने पैसा वापस डाल दिया, और सी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10,500। तो लेट अस चेक कि ये रेशियो कितना आता है। So this cancels 40 times, this cancels 42 times, and this cancels 21 times. So 40 is to 42 is to 21. Is there any answer option which looks like that? Yes, answer option A. That's the correct answer. Next one. If A upon B is equal to 1/3, B upon C is equal to 2/5, C upon D is equal to 3/2, D upon E is equal to 5/7, find the ratio AC upon B square. अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। I'll go with one method first and then discuss the second method, right? A, B, C, 1, 3, 2, 5 कंपाउंडिंग कर देते हैं रेशियोज की, बहुत ही आसान हो जाएगा। 1 into 2 2, 3 into 2 6, 3 into 5 15। सो 2k, 6k, 15k ए, बी और सी की वैल्यूज हैं, तो ए सी अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2k इंटू 15k होल ओवर b square, that is 6k whole square. So that features to be 30k square upon 36k square, that is 5/6. Do I have an answer option which looks like that? Yes, answer option B. That's the correct answer. One way to solve such questions.
ABCDE पूरे के साथ करना पड़ता तो कंपाउंडिंग में थोड़ा सा लेंदी हो जाता, पर फिर भी किया जा सकता है. I'll just quickly show you how to go about compounding with all of them in the next question, क्योंकि next question भी same data set पर based है. So I'll discuss the other way there. So ABCDE 1:3, 2:5, so that's 2, 3. Now C by D is 3/2, 3, 2. C वाला कॉलम पूरा पता है तो C की वैल्यूज पेस्ट कर दूंगा. D by E 5/7, so D वाला कॉलम पूरा पता है तो D की वैल्यूज रो वाइज पेस्ट कर दूंगा. I'll just quickly multiply them. That's 2 times 3, 6 times 5, 30k. That's 3 times 2, 6 times 3, 18 times 5, 90k, and so on. That's 25 times 9, 225k. And if you could not understand this, there should be 3 here. And that's 25 times 6, 150k. And that's 30 times 7, 210k. Those are the values, right? I can see that all of these values can be divided by 15. So I'll just divide all the values by 15 to get a simple ratio. So 30k divided by 15, that's 2k, 6k, 15k, 10k, 14k. अब जो भी पूछा है वो निकाल लेते हैं. So I get A upon D plus B upon D upon B upon C plus E upon C, which can be simplified as A plus B whole over D upon B plus E whole over C. So A plus B, that's 2k plus 6k, 8k, over D, that's 10k, whole over B plus E, that's 20k, over C, that's 15k. K cancels K cancels K. This becomes 4 upon 5. 8 upon 10 को मैंने 4 upon 5 लिख दिया, and 20 upon 15 न्यूमरेटर में जाके 15 upon 20 हो जाएगा. 15 upon 20 is 3/4. So that features to be 3/5, which is the answer. 3:5. Answer option C is the correct answer. Again, this is one way to do such questions. The other way I've discussed in my previous class, previous practice sheets, wherein what would we do to find A upon D? A upon D निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? A upon B times B upon C times C upon D. ऐसा करके A upon D सीधे निकाला जा सकता है. 1/3 times 2/5 times 3/2. So 2 cancels 2, 3 cancels 3, you're left with 1/5. ऐसे ही B upon D निकालने के लिए B upon C times C upon D ये किया जा सकता है. B upon C times C upon D, so that's 2/5 times 3/2. This cancels and you get 3/5. So 1/5 plus 3/5 न्यूमरेटर में हो जाएगा 4/5. And likewise B by C तो दिया ही हुआ है 2/5. और क्या पूछा है? E by C. अब E by C निकालने में थोड़ा सा टैक्ट है. E by C is E by D into D by C. तो E by D क्या होगा? 7/5 into D by C क्या होगा? 2/3. So that's 14/15. तो B by C, which is 2/5 plus 14/15, तो इसको ऐड कर लोगे 6/15 plus 14/15 20/15 आ जाएगा. तो 4/5 into 15/20, which is 3/4, which cancels 4, and you get 3/5. That's another way of solving such questions, but you can choose whichever you feel comfortable with. The ratio of girls to boys in a school is 5:7, and the ratio of day scholar girls to hosteler girls is 3:2. What is the strength of the school if 120 girls are hostelers? तो ऐसे क्वेश्चन को सीधे स्टार्ट कर सकते हैं. बॉयज गर्ल्स टोटल क्या दिया है रेशियो? बॉयज और गर्ल्स का, सॉरी गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या दिया है? 7:5. ठीक है, 7:5. उसमें गर्ल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? डे स्कॉलर और हॉस्टलर 3:2. इससे आसान क्या हो सकता है? 5x को 3:2 में तोड़ना बहुत ही आसान है. सो डे स्कॉलर हॉस्टलर
3x 2x हो गए टोटल 5x गर्ल्स 7x बॉयज। हमको क्या दिया है 120 स्कूल्स सॉरी 120 गर्ल्स आर हॉस्टलर्स। हॉस्टलर्स मतलब 2x इज इक्वल टू 120 x इज इक्वल टू 60 x is equal to 60 total strength of school is 7x plus 5x 12x is equal to 12 into 60 that's 720 one way to solve this question। another way you can do it orally इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो 120 गर्ल्स हॉस्टलर्स है और हॉस्टलर और डे स्कॉलर्स का रेशियो क्या है 3:2 मतलब ये 120 तो ये 180 टोटल 300 हो गया ये। अच्छा गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या है 5:7 300 तो 60 इंटू 5 300 होता है 60 इंटू 7 420 300 प्लस 420 टोटल स्टूडेंट्स 720 आंसर फिनिश्ड। either which way you can solve it। The sum of 50% of x and 40% of y is equal to sum of 75% of x and 20% of y। तो आसान है 50% of x plus 40% of y equals 75% of y plus 20% of x। 50% of x minus 20% of x 30% of x is equal to 75% of y minus 40% of y 35% of y x upon y is equal to 7/6 यही पूछा है खत्म 7:6 आंसर। Number of goals scored by a team in a football match varies directly as the square of number of international level players in the team। Number of goals scored varies as square of number of international level players in the team। Difference in goals scored when 4 and 6 international players participate is 5 goals। एक काम करते हैं इक्वेशन लिख लेते हैं g is equal to kn square। तो नंबर ऑफ गोल्स जब 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे क्या होगा लेट्स कॉल इट G4 16 के एंड व्हेन देयर आर 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स G6 ये क्या होगा 6 स्क्वायर 36 के। सो डिफरेंस कितना हो गया G6 माइनस G4 इज इक्वल टू 36k माइनस 16k विच इज 20k। पर हमको दिया क्या है 5 गोल्स है डिफरेंस तो 20k इज इक्वल टू 5 k इज इक्वल टू 1/4 k is equal to 1/4 means number of goals is equal to 1/4 n square। How many goals will be scored when 8 international levels players participate? G8 निकालना है 1/4 of 8 square that's 64 का 1/4 that is 16 तो G8 क्या होना चाहिए 16 आंसर ऑप्शन C। Also I don't know if you found it or not this is not a very well drafted question क्योंकि इस केस में अगर नंबर ऑफ इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स ऑड हो गया तो नंबर ऑफ गोल्स जो होगा वो इंटीजर नहीं रह जाएगा जो कि होना नहीं चाहिए था। तो या तो इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था कि अज्यूम दैट नंबर ऑफ इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स इज ऑलवेज इवन या तो इसमें डेटा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था। क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से एक्चुअली कुछ भी गलत नहीं है इट्स जस्ट दैट द डेटा इज नॉट वेरी वेल ड्राफ्टेड दैट्स ऑल। सो डोंट वरी कि सर ऐसा कैसे हो गया कि g इक्वल टू 1/4 n स्क्वायर हो गया उसमें ऑड होता तो क्या होता। उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन बनाते समय कि क्या करना है। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2 ठीक है 2/3 ऑफ बॉयज आर मोर देन 20 years old and 20 girls are less than 20 years old। What is the strength of the class if the ratio of number of students who are more than 20 years old to the number of students who are less than 20 years old is 2:1। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा assumption करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं तो आंसर कैनॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा कि कोई भी एग्जैक्टली 20 years old नहीं है जो भी है या तो 20 years से ज्यादा है या 20 years से कम है। सो फेयर ना बॉयज और गर्ल्स का रेशो और ग्रेटर देन 20 और लेस देन 20 के बारे में बात की है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है तो अगर ये 3x होगा ये 2x होगा तो टोटल 5x होगा। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मोर देन 20 years old नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लेस देन 20 years old का रेशियो 2:1 है तो मोर देन 20 और लेस देन 20 ये 2y होगा ये y होगा तो टोटल 3y होगा मतलब 5x इज इक्वल टू 3y।
एसेंशियली मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए. सो आई टेक द टोटल स्ट्रेंथ टू बी 15. सो आई जस्ट टेक दिस एज 15z और 15k. 15k को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करो, 9k 6k. 15 को तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करो, 10k 5k. 2/3 ऑफ बॉयज आर मोर देन 20 years old. बॉयज कितने हैं? 9k. उसका 2/3. ये सब ओरली करते बनना चाहिए आपको, है ना. मोर देन 20 years old and 20 girls are less than 20 years old. 20 girls are less than 20 years old. एक बात है, मैं 20 यहाँ लिखने के बजाय अगर इसको फिगर आउट करने की कोशिश करता तो देखो 6k प्लस ये 10k होना चाहिए था, मतलब ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 4k. अच्छा 4k प्लस ये 6k होना चाहिए था, मतलब ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 2k. पर हमको क्वेश्चन में दिया है कि यही वैल्यू 20 है, मतलब 2k इज इक्वल टू 20 दिया है, मतलब k इज इक्वल टू 10 दिया है. फिनिश्ड. क्लास में कितने स्टूडेंट्स? 150. पर हमसे पूछा क्या है, एक बार देखें. व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास? यही तो पूछा है. 150 आंसर. फिनिश्ड. A loaf of bread of weight 60 grams is cut into 3 unequal pieces, A, B and C. The ratio of weights of heaviest piece A and lightest piece C is 5:1. इसको A B C में डिवाइड किया, मतलब A प्लस B प्लस C है ये 60. A और B का रेशियो, A और C का रेशियो क्या दिया है? 5:1. तो 5k k. B is 18 grams heavier than C. C का वेट k है तो B का वेट k प्लस 18. So that makes it 7k plus 18 is equal to 60 or 7k is equal to 42, k is equal to 6. What is the weight of A? A का weight 5k. 5 into 6, 30. Answer. A hydraulic pump discharges L liters of water per second. ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा. ट्राई टू विजुअलाइज इट. एक पंप है, वो L लीटर्स ऑफ वाटर पर सेकेंड डिस्चार्ज करता है थ्रू अ पाइप विथ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर d सेंटीमीटर. तो एक पाइप है, पाइप इमेजिन कर सकते हैं. इसका डायमीटर, इस पाइप का डायमीटर, जैसे इस पाइप का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है अपने को? d सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगा? d/2. अब क्या दिया है इसके आगे? द वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज इज v मीटर्स पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो पानी निकल रहा है, उसकी वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? v मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में v मीटर आगे चला जाएगा पानी. ठीक है. सो लेट अस से एक सेकेंड में ये v मीटर ये मान लेते हैं, v मीटर्स. ठीक है. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये तो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू, लेट्स से वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. आर का वैल्यू हमको पता है d/2 और h हमको पता है v. तो पाई/4 d स्क्वायर v, ऐसा हमको पता है. इतना लीटर पानी बाहर आ रहा होगा वॉल्यूम, और हमको क्या बताया? पर सेकेंड कितना लीटर बाहर आता है? L. सो आई कैन राइट L इज इक्वल टू पाई/4 d स्क्वायर v. यहां तक बिल्कुल क्लियर है. इफेक्टिव हॉर्स पावर H ऑफ द पंप. अब नई चीज के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. सो लेट्स से H के बारे में क्या बोल रहा है?
effective horsepower H of the pump varies directly to L and the square of V, L V square. ठीक है, V तो ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास. H is directly proportional to LV square, मतलब I can write H is equal to K L V square. L की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, इसको यहां पुट कर देते हैं. सो H is equal to K L which is pi by 4 D square V into V square. So I get K pi by 4 constant है, so I'll put that as M D square V cube. तो अब क्या आ गया हमारे पास, डी स्क्वेयर. हमको क्या निकालना है, वेरिएशन ऑफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट. अब वेरिएशन ऑफ डी ने एक्चुअली डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट. सो आई कैन फ्रॉम दिस फॉर्मूला गेट डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एच अपॉन वी क्यूब. तो डी इज इक्वल टू रूट 1 अपॉन एम. ये कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट से कोई मतलब नहीं है एज लॉन्ग एज वी आर जस्ट फाइंडिंग द वेरिएशन. रूट एच अपॉन रूट ऑफ वी क्यूब दैट इज वी टू द पावर 3/2. ऐसा कुछ दिख रहा है क्या मुझे. डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं, रूट एच अपॉन वी टू द पावर 3/2. कैन आई सी समथिंग लाइक दैट. Yes, answer option C, that's the correct answer. So whenever you see something which looks complicated, I just want you to think, visualize the problem. What does it mean? If you can do that, you'll be able to understand such questions very easily and solve the questions easily as well. The cost of coal for a steam engine is proportional to the cube of its speed. कॉस्ट ऑफ कोल की बात कर रहे हैं, इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ स्पीड. ठीक है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड. कोल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड क्यूब, और कोल कॉस्ट इज इक्वल टू k टाइम्स s क्यूब. एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर कोल कॉस्ट है 30 रुपीज पर आवर. तो कोल कॉस्ट कितना है, 30 रुपीज पर आवर. कब, जब स्पीड क्या है 10, विच मीन्स k इज इक्वल टू 30/1000 और 3/100. तो आई कैन राइट कोल कॉस्ट पर आवर इज इक्वल टू 3/100 ऑफ s क्यूब. एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस एड अप टू 480 रुपीज पर आवर. तो अदर एक्सपेंसेस भी हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं अगर मैं, तो वो कोल एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस कितना है पर आवर, 480 रुपीज पर आवर. और कोल एक्सपेंसेस कितना है पर आवर, 3s क्यूब बाई 100 पर आवर. तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया, इतना रुपए पर आवर. फाइंड द स्पीड ऑफ द इंजन इन किलोमीटर्स पर आवर. हमको क्या निकालना है, स्पीड एट विच द टोटल एक्सपेंसेस पर किलोमीटर विल बी मिनिमम. अब बहुत सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर. मुझे वो स्पीड निकालनी है जिस पर टोटल एक्सपेंस पर किलोमीटर मिनिमम हो जाए. तो पहले तो मुझे ये देखना चाहिए कि 1 किलोमीटर चलने के लिए टोटल एक्सपेंस है कितना. मुझे क्या पता है, 1 घंटे चलने के लिए ये पूरा इतने रुपए पर आवर लगता है. 1 घंटे चलने के लिए लेट्स से x रुपीज लगता है, लेट्स से दिस इज x. 1 घंटे चलने के लिए अगर x रुपए लगता है तो 1 किलोमीटर चलने के लिए कितने रुपए लगेंगे. तो मुझे देखना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर चलने के लिए कितने घंटे लगेंगे. वी हैव ऑलरेडी डन समथिंग लाइक दिस इन अ प्रीवियस क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर. 1 किलोमीटर चलने के लिए अगर 4 घंटे लगते हैं, 1 घंटे का x रुपए, तो 4x रुपीज लग जाएगा. तो 1 किलोमीटर चलने के लिए कितने घंटे लगते हैं मुझे ये पता करना पड़ेगा. 1 किलोमीटर चलने के लिए टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 1 किलोमीटर, तो 1/s आवर्स लगते हैं 1 किलोमीटर चलने के लिए. तो अगर 1 घंटे के खर्च अगर x रुपए है तो 1 किलोमीटर का खर्च क्या होगा, x अपॉन s रुपए. तो ये x था, x अपॉन s क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय s. सो लेट्स से
total expense per kilometer is equal to 1 upon s into 3s cube by 100 plus 480, which is 3s square by 100 plus 480 over s. हमको इसको मिनिमाइज करना है, मतलब हमको क्या निकालना है, ये मिनिमम हो जाए ऐसा s क्या होगा. अब फिलहाल बिकॉज आप लोगों ने इसका अभी कोई तरीका पढ़ा नहीं होगा, तो एंड ऑल्सो कोई भी आंसर ऑप्शन देखो, नन ऑफ दीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड टाइप की चीज़ें नहीं है. सो द इजीएस्ट वे राइट नाउ विल बी कि हम सारे अलग अलग आंसर्स पुट करके देखें और देखें कि ये एक्सप्रेशन मिनिमम कौन सी वैल्यू पर हो रहा है. आप करोगे तो आपको आंसर आएगा 20. डी इज इक्वल टू 20 पर ये टोटल एक्सपेंस पर किलोमीटर मिनिमम हो जाएगा. बट इसका एक प्रॉपर तरीका भी होता है. आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे आप अलजेब्रा में, इनइक्वालिटीज में, मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो किसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कैसे करते हैं उसका एक तरीका होता है. दो आई एम गोइंग टू शेयर इट हियर फॉर सम ऑफ यू हु कैन अंडरस्टैंड इट. बाकी लोगों के लिए don't worry too much, you will learn the theory required for solving such questions later on, right? For now, just a second. There's something called as the arithmetic mean geometric mean inequality. am is greater than or equal to gm. Now I am sure कि कुछ लोगों को शायद समझ आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा. अगेन आई एम टेलिंग यू बिफोर आई स्टार्ट दिस कि ये सभी लोगों के लिए नहीं है. आपको ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर आ गया है 20. ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है. सो दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम रखना है. सो आई राइट इट एज 3s स्क्वायर बाई 100 प्लस 240 ओवर s प्लस 240 over s upon 3 is greater than or equal to cube root of 3s square by 100 into 240 upon s into 240 upon s. इसमें s स्क्वायर s कैंसिल हो जाएगा. आपको 100 का ये 240 के जीरो से कैंसिल हो जाएगा. सो 24 इंटू 24 इंटू 3 1728 का क्यूब रूट 12. सो यू गेट 3s स्क्वायर प्लस 240 बाई एस प्लस सॉरी अपॉन 100 प्लस 240 बाई एस प्लस 240 बाई एस. ये नीचे वाला 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. 12 इंटू 3 दैट इज 36. सो यू गेट दिस इज इक्वल टू 36. मिनिमम ओवरऑल एक्सपेंसेस जो होगा, टोटल एक्सपेंस पर किलोमीटर मिनिमम 36 रुपये होगा. एस की कौन सी वैल्यू पर ऐसा होगा? ये जो इक्वालिटी होती है ये तब होती है जब सारे नंबर्स बराबर होते हैं, विच मीन्स दैट 3s स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 240 ओवर s. सो ऐसे में 3 cancels 240 80 times and you get s cube is equal to 8000. That is s is equal to 20. So there's a proper method to it. What I'm trying to convey to all of you is ऐसा नहीं है कि आंसर ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन आपको लगे कि सर 20 से कम कोई वैल्यू होती तो उस पर तो बढ़ जाता. ऐसा नहीं होगा. there's some proper method to calculate s is equal to 20. For now, those of you who not understand the portion, those of you who have not understood the portion in pink, don't worry about it. आगे जाके आप सीखोगे क्लास में AMGM इनइक्वालिटी के बारे में, तब आप इसको यूज कर सकते हो. लेट ABCDE बी इंटीजर्स सच दैट ABC का रेशियो दिया है, BDE का रेशियो दिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स अ नंबर दैट इज नॉट एन इंटीजर? सब में ABCD यूज हुआ है. आई विल जस्ट स्ट्रेट अवे गो अहेड एंड कंपाउंड द रेशियो. ABCDE BDE का रेशियो 18 4 3 ऐसा दिया हुआ है. और ABC का रेशियो 12 to 1 दिया है. 2 में B यानी कि 2 में 9 मल्टीप्लाई होकर 18 आया, तो 12 इंटू 9 108 ये होगा और 1 इंटू 9 9 ये होगा. दैट इज कंपाउंडिंग रेशियोज. अगर आपको ये नहीं सूट कर रहा तो आप ABCDE कॉमन वो यूज करके फिर भी कर सकते हो. यू विल गेट द सेम आंसर. 108:18:9:4:3. तो A अपॉन 27 यानी कि 108K अपॉन 27 एंड B अपॉन E 18K अपॉन 3K.
ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ओके, a upon 36 c upon e, a upon 36 that is 108 k upon 36 c upon e that is 9k upon 3k, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। a upon 12 that is 108k upon 12, bd upon 18 that is 18k into 4k upon 18, ये भी इंटीजर है 4k स्क्वायर, और ये भी इंटीजर है 9k। यू मे रियलाइज सब तो इंटीजर हो रहे हैं, एक आंसर ऑप्शन आएगा जिसमें नहीं होगा, डोंट वरी। a upon 6 108k upon 6, c upon d 9k upon 4k, well 9 upon 4 is not an integer, ये इंटीजर है जरूर लेकिन 9 upon 4 इंटीजर नहीं है। और हमें क्या निकालना था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स अ नंबर दैट इज नॉट एन इंटीजर, c upon d इज नॉट एन इंटीजर, आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर से एक सेट ऑफ डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन आ गया है। अ लेडी हैज अ टोटल ऑफ 75 रुपीज इन हर पर्स, इफ द टोटल अमाउंट शी हैज इज इन डिनोमिनेशंस ऑफ 10 पैसे 25 पैसे एंड 50 पैसे, and the ratio of 10 paise, 25 paise and 10 paise and 25 paise coins is 5:3, and that of 25 paise and 50 paise coins is 6:5. well 25 paise coins हैं, 10 paise coins हैं और 50 paise coins हैं। 25 paise और 50 paise का रेशियो 6:5 है और इनका रेशियो 5:3 है, तो 3 into 2 6, तो 5 into 2 10, तो ये 10 के 6 के 5 के इतने कॉइन्स होने चाहिए। 10 के 10 पैसे कॉइन्स मतलब अमाउंट कितना हो गया 0.1, सॉरी 10 के 10 पैसे कॉइन्स है मतलब अमाउंट कितना हो गया k रुपीस। 6 के 25 पैसे कॉइन्स है मतलब अमाउंट कितना हो गया 1.5 k रुपीस, और 5 के 50 पैसे कॉइन्स है मतलब अमाउंट कितना हो गया 2.5 k रुपीस। टोटल अमाउंट कितना हो गया, आई एम श्योर यू रिमेंबर डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू अमाउंट, वी बीन यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट मेनी टाइम्स नाउ। सो दिस इज टोटल ऑफ 5k, जबकि टोटल अमाउंट कितना दिया है 75 रुपीस। सो k इज इक्वल टू 15, विच मीन्स द नंबर ऑफ 50 paise coins are 5 into 15 75, the number of 25 paise coins are 6 into 15 150, and the number of 10 paise coins are 150. I'm so sorry, this should have been 90, 6 into 15 which is 90. So even if you want whether to check कि सही हुआ या नहीं हुआ, let's check। 150 अगर 10 पैसे के कॉइन से मतलब 15 रुपए हो गए हमारे पास, 90 अगर 25 पैसे के कॉइन से मतलब 22.5 रुपीज हो गए हमारे पास, 75 50 पैसे कॉइन से मतलब अमाउंट हो गया 37.5। नाउ 37.5 प्लस 22.5 इज 60 एंड 60 प्लस 15 इज 75, तो हो गया टोटल अमाउंट 75 रुपीज विच इज व्हाट वी वांटेड। नाउ व्हाट, सब कुछ सॉल्व हो गया, लेट्स चेक व्हाट इज द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स। 10 पैसे कॉइन्स फिनिश्ड 150, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 50 पैसे कॉइन्स। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये। 25 पैसे कॉइन्स हमें कितना आए थे 75, और सॉरी 50 पैसे कॉइन्स 75 थे और 25 पैसे कॉइन्स 90 थे, सो टोटल 165, आंसर ऑप्शन डी। इफ शी डबल्ड हर अमाउंट एंड कॉइन्स आर इन द सेम रेशियो देन द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स विल बी। अच्छा, अभी क्या आया था 10 पैसे कॉइन्स 25 पैसे कॉइन्स और 50 पैसे कॉइन्स, अभी क्या आया 150 90 75, ये आया था। अमाउंट अगर डबल करना है मतलब हर रेशियो सेम रख के अमाउंट डबल करना है, मतलब हर नंबर ऑफ कॉइन्स डबल हो जाना चाहिए। तो ये 300 हो जाना चाहिए, ये 180 हो जाना चाहिए, ये 150 हो जाना चाहिए। यू कैन चेक 310 पैसे कॉइन्स मतलब अमाउंट कितना हो गया 30 रुपीज़, 180 25 पैसे कॉइन्स मतलब अमाउंट हो गया 45 रुपीज़, 150 50 पैसे कॉइन्स मतलब अमाउंट 75, 75 एंड 45 120 एंड 30 150 रुपीज़ हो गए 150, 75 से 150, यही चाहिए था, रेशियो सेम रहा। नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितने हो गए 180, सो आंसर 180। इफ शी स्पेंड्स हाफ ऑफ हर 10 पैसे कॉइन्स देन शी इज लेफ्ट विद हाउ मच मनी इन हर पर्स। अभी 150 कॉइन्स थे 10 पैसे वाले, हाफ खर्च कर दिए मतलब 75 कॉइन्स बचे हैं, मतलब हमने कितने कॉइन्स खर्च कर दिए 75 कॉइन्स खर्च कर दिए 10 पैसे के, मतलब हमने 7.5 रुपीज़ खर्च कर दिए। 7.5 रुपीज़ खर्च किए 75 रुपीज़ में से,
So 75 minus 7.5 is 67.5. Answer option A. A lady has a total of 75 rupees. Same thing. If she replaced 40% of total 25 paise coins, I'll just have to quickly jot down. 10 पैसे कॉइन्स आए थे, 25 पैसे कॉइन्स आए थे और 50 पैसे कॉइन्स आए थे. 10 पैसे कॉइन्स हमारे पास कितने थे? 150. 25 पैसे कॉइन्स 90 और 75. इफ शी रिप्लेस्ड 40% ऑफ टोटल 25 पैसे कॉइन्स विद 50 पैसे कॉइन्स, 40% यानी कि इसमें से 90 का 40% क्या होता है? 36 कॉइन्स इसने हटा दिए 25 पैसे वाले, यानी कि इसके पास 54 कॉइन्स बचे. और 36 कॉइन्स वो ले आई कौन से? 50 पैसे वाले. दैट मीन्स इसके पास 111 ये वाले कॉइन्स हो गए. व्हाट इज द चेंज इन हर मनी? एक तरीका ये है कि मैं टोटल अमाउंट ऐसे निकाल लूँ. सो 150 10 पैसे वाले 15 रुपये, 54 25 पैसे वाले यानी कि 13.5 रुपीज़, 111 50 पैसे वाले कॉइन्स यानी कि 55.5 रुपीज़. तो टोटल कितना हो गया? 55.5 प्लस 13.5 दैट 69 एंड 15. 69 एंड 15 इज 84. तो अमाउंट कितना चेंज हो गया? 9 रुपीज़ का चेंज आया. अमाउंट इंक्रीजेस बाय 9 रुपीज़. आंसर ऑप्शन ए. एक तरीका ये है. एक इससे ज़्यादा आसान तरीका है कि देखो, कोई भी 25 पैसे कॉइन को अगर मैं रिप्लेस करूं 50 पैसे कॉइन से, तो अमाउंट बढ़ेगा. कितना बढ़ेगा? 25 पैसे बढ़ेगा. कितने कॉइन्स रिप्लेस किए मैंने? 90 कॉइन्स का 40%. 40% ऑफ 90 कितना होता है? 36. 36 कॉइन्स मैंने रिप्लेस किए, यानी कि 36 बार 25 पैसे बढ़े. 36 बार 25 पैसे बढ़े मतलब 9 रुपए बढ़ गए. अमाउंट इंक्रीजेस बाय 9. फिनिश्ड. एज सिंपल एज दैट. The income of A, B and C are 12,000, 15,000 and 18,000 respectively. If their expenditures are in the ratio 2:3:4, who is saving more amount? अब ये टोटली डिपेंड करता है किस बात पर? कि ये लोग कितना कितना खर्च कर रहे हैं. देखो, क्योंकि इनकम्स हैं 12,000, 15,000 और 18,000, ऐसा हो सकता है कि एक्सपेंडिचर 9,000, 13,500 और 18,000 हो. 2:3:4 के केस में सच दैट सी का सेविंग हो 0, बी का सेविंग हो 1500 और ए का सेविंग हो 3000. पर ऐसा भी हो सकता है दैट इनके एक्सपेंडिचर्स 2:3:4 के रेशियो में 200 रुपीज़, 300 रुपीज़ और 400 रुपीज़ हो, जिस केस में ये 11,800 सेव कर रहा है, पर ये 14,700 सेव कर रहा है और ये 17,600 सेव कर रहा है. मतलब सी का सेविंग लीस्ट भी हो सकता है, हाईएस्ट भी हो सकता है. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि 2:3:4 के रेशियो में जो सेव हो रहा है वो वैल्यूज़ कैसी हैं. Therefore, the answer in this question will become cannot be determined. However, याद रखना कि ऐसा हमेशा नहीं होगा. एक पर्टिकुलर केस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये रेशियो 2:3:4 दिया होने के बजाय आपको ये रेशियो दिया होता 4:5:6, 4K, 5K, 6K. अभी सेविंग्स अगर आप देखोगे तो 12,000 माइनस 4K, 15,000 माइनस 5K एंड 18,000 माइनस 6K में you can take out certain parts common. You see, you can take out 3,000 माइनस K. 4 कॉमन आने से 3,000 माइनस K यहाँ, 5 कॉमन आने से 3,000 माइनस K यहाँ और 6 कॉमन आने से 3,000 माइनस K यहाँ. कॉमन आके कैंसिल हो जाता, तो सेविंग्स का रेशियो क्या आता? 4:5:6. मतलब सी सबसे ज़्यादा सेव कर रहा होता. ऐसा क्या अलग हो गया इस क्वेश्चन में जो पिछले क्वेश्चन से कैनॉट बी डिटरमाइंड नहीं रह गया आंसर? पर इनकम का रेशियो 4:5:6 है,
उसी में अगर एक्सपेंडिचर का भी रेशियो 4:5:6 होगा तो सेविंग का भी रेशियो 4:5:6 होगा। पर क्योंकि यहाँ इनकम का रेशियो अलग था 4:5:6, जबकि एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था 2:3:4, देयरफॉर सेविंग्स का रेशियो हम नहीं निकाल सकते। आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा सॉरी। एवरी पर्सन इन अ सर्टन ग्रुप इज आइदर सचिन तेंदुलकर और डॉन ब्रैडमैन फैन, ठीक है, बट नॉट अ फैन ऑफ बोथ ऑफ देम। चलो ये भी ठीक है। The ratio of Don Bradman's fans to Sachin Tendulkar's fans is 5:3. Sachin Tendulkar, Don Bradman, 5:3. 22 Don Bradman fans make a change to become Sachin Tendulkar's fans. Ratio of Sachin Tendulkar fans to Bradman's fans will be 1:1. 1:1 मतलब same, equal. So you solve this and you'll get k is equal to 22. k is equal to 22 मतलब अभी number of डॉन ब्रैडमैन फैंस क्या है 110 एंड नंबर ऑफ सचिन फैंस क्या है 66. व्हाट इज द नंबर ऑफ सचिन तेंदुलकर फैंस इन द ग्रुप इनिशियली 66. आंसर. Three friends, Sam, Michael and Puma, went to a restaurant for lunch. Sam had $100 with him, Michael had $60 and Puma had $40. They got a bill for $104 and paid $16 as tip. मतलब टोटल इन्होंने पे कर दिया $120. They shared a total expense in the ratio of amounts each carried. तो Sam, Michael, Puma, 100, 60, 40, 5:3:2 के रेशियो में अमाउंट्स कैरी किए हैं। तो $120 का जो टोटल है उसमें से भी 5:3:2 के रेशियो में इनको शेयर करना है, ऐसा लिखा है। तो $120 का 5/10, 3/10 और 2/10. If A is the difference between amounts paid by Sam and Michael, 60 minus 30, A is equal to 24. And B is the difference between amounts paid by Puma and Michael, 36 minus 24, 12. Find the value of A is to B. 24 is to 12, 2 is to 1. Answer B. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. There are 6 bottles of same capacity filled with water. Quantities of water in all the bottles are in the ratio 1:2:3:4:5:6. Water in each of the bottles is poured into an empty jar whose capacity is half of the total capacity of 6 bottles. The jar is filled up completely. How many bottles were at least 70% filled with water initially? ठीक है, 6 जार्स है जिनका कैपेसिटी सेम है. इसमें K, इसमें 2K, इसमें 3K, इसमें 4K, इसमें 5K और इसमें 6K ऑलरेडी भरा हुआ है, राइट. अभी इन सबको पोर कर दिया गया एक एम्प्टी जार में जिसका कैपेसिटी हाफ ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ 6 बॉटल्स था. तो टोटल कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल वाज सेम. तो अगर मैं मान लूँ कि टोटल कैपेसिटी x था तो 6x है टोटल कैपेसिटी, उसका हाफ हो गया 3x. तो एक जार लिया जिसका कैपेसिटी है 3x, उसमें ये सब भर दिया तो पूरा भर गया. जार इज फिल्ड अप कंप्लीटली. तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 5k प्लस 6k आप कर लो, आपको आएगा 21k. 21k इज इक्वल टू 3x मतलब 7k is equal to x. I'll just rewrite it. 3x is equal to 21k. That means x is equal to 7k. तो टोटल कैपेसिटी कितना था 7k. हर जार का. How many bottles were at least 70% filled with water?
7K का 70% होता है 4.9K, मतलब कितने बॉटल्स में कम से कम 4.9K भरा हुआ था? वेल, 2 बॉटल्स में, 5K वाले में और 6K वाले में भरा हुआ था 2 बॉटल्स. आंसर. I hope you realize ratio, proportion and variation is a very easy chapter. The only people in each of the auditoriums A and B in a school are students, and each student in each of the auditoriums A and B is either from grade 8 or from grade 7. Auditorium A, Auditorium B, grade 8, grade 7. The ratio of number of students of grade 8 to grade 7 in the auditorium A is 4 is to 5. 4x, 5x, 9x total. Ratio of number of students of grade 8 to grade 7 in auditorium B is 3 is to 17. 3y, 17y, 20y. Ratio of total number of students from grade 8 in both the auditoriums A and B to total number of students from grade 7 in both the auditoriums is 5 is to 7. Total grade 8 वाले students है 4x plus 3y और 5x plus 17y grade 7 वाले students हैं. इसका रेशियो दिया है 4x plus 3y upon 5x plus 17y is equal to 5 is to 7. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 4 28 minus 25, 3x is equal to 7 3 is 21, 17 5 is 85, 85 minus 21 that is 64y. x upon y is equal to 64 upon 3. तो x is equal to 64k and y is equal to 3k ऐसा मान लेते हैं. So I'll just rewrite all these values using x and y की values. So 4x, that is 4 into 64k, 256k. 5x, that is 5 into 64, 320k. 9x, 576k. 20y, that is 60k. 17y, that is 51k. 3y, that is 9k. This becomes 256 plus 9, 265k, and this becomes 320 plus 51, 371k, and the grand total of all students becomes 636k. क्या पूछा है अब? What is the ratio of total number of students in auditorium A to total number of students in auditorium B? A और B के students का ratio पूछा है मुझसे. So I cancel 12. 12 gets cancelled and I get 48. 5. 48 is to 5. Answer option D. 48 is to 5. Of all the students in a certain dormitory, 1 by 2 are first year. Half are first year students and rest are second year students. If 4/5 of first year students have not declared a major and fraction of second year students who have declared a major is 3 times the fraction of first year students who have declared a major. Anyway, so first year students, second year students have declared major, have not declared major. Is categorization, you see, tabulating the data is very very useful. Most of the times it helps you a lot. क्या बोला है? हाफ आर फर्स्ट ईयर, रेस्ट आर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इक्वल है. दिस इज इक्वल टू दिस. 4/5 ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैव नॉट डिक्लेयर्ड अ मेजर, 80%. तो अगर मैं इसको सिंपली 100x मान लूँ और इसको 100x मान लूँ तो 100x का 4/5 यानी कि 80x ने डिक्लेयर नहीं किया है अपना मेजर. एंड द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हु हैव डिक्लेयर्ड, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हु हैव डिक्लेयर्ड अ मेजर इज 3 times द फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हु हैव डिक्लेयर्ड अ मेजर. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हु हैव डिक्लेयर्ड अ मेजर कितना परसेंट है? 20%. तो उसका 3 times यानी कि ये 60% हो गया. दिस इज 20% ऑफ टोटल, सो दिस शुड बिकम 60% ऑफ टोटल. 60% ऑफ टोटल इज 100x का 60% कितना हो गया? 60x. So I have 60x here, which means that this value is 40x. So total here, total students who have declared a major 80x and those who have not 120x, and total strength 200x.
What fraction of all students in the dormitory are second year students who have not declared a major? What fraction of all the students in the dormitory? 200x का कितना part are second year students who have not declared a major? Second year students who have not declared a major, 40x, 1 by 5. Answer option A is the correct answer. Ratio of present ages of two persons, Ryan and Simon, 5:8. Which of the following cannot be the ratio of ages Ryan and Simon after 12 years? अभी अगर उनकी एजेस 5:8 है, मतलब 5 के और 8 के है, 12 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो ये होगा, तो ये इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? तो अगर आप देखोगे 1/2 रख करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10k 8k 2k इज इक्वल टू 24 12 -12 k इज इक्वल टू -6, ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके एजेस -30 और -48 हो, एंड देयरफॉर आंसर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, बिकॉज ये नहीं हो सकता। बट इसमें प्रिंसिपल क्या है? क्या मुझे सारे आंसर ऑप्शंस चेक करने पड़ते? वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग जब लिखा है मतलब हर आंसर ऑप्शन को कंसिडर तो करना है, बट देयर इज अ सिंपलर वे टू गो अबाउट दिस। इफ यू थिंक अबाउट इट, 5:8 is a proper fraction. Ratio of lesser inequality, if you remember, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी में अगर आप कोई कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड कर दो तो वैल्यू हमेशा ओरिजिनल रेशियो से बड़ी होती है। ओरिजिनल रेशियो मतलब 62.5%, जो इस केस में है उससे बड़ा ही हो सकता है रेशियो। पर चेक हियर, 3/7, oh I'm so sorry, thank God that I helped you. Which of the following can भी पूछा है, cannot भी नहीं पूछा है, तो 1/2 तो नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता। आप चेक करो, 3/7 भी नहीं हो सकता, 3/7 करोगे तो भी ऐसे ही कुछ नेगेटिव वगैरह आएगा। आप चेक करोगे 9/19 भी नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है? सिर्फ सी, 7:9 हो सकता है, बिकॉज ये वैल्यू को 62.5% से बड़ा होना चाहिए। 7:9 इज द ओनली वन, 77.7% जो 62.5% से बड़ा है, तो बाकी सभी केसेस में नहीं हो पाएगा, सिर्फ 7:9 के केस में हो पाएगा। द आंसर शुड बी सी, नॉट ए, माई मिस्टेक। ऐसी गलतियां अधिकतर होती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट के बजाय हमने विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिक कर दिया। प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस, राइट? The number of fruits purchased by Miss Paul are given by the following two equations, where A, B and C are the number of apples, bananas and oranges respectively. ठीक है? Which of the following which of the following represents the ratio of number of apples and oranges and bananas purchased by Miss Paul? ठीक है, हमको रेशियो निकालना है, सब्सटीट्यूशन करते हैं। I'll get 3a minus 4b प्लस 2c इक्वल्स 0। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8a माइनस 4b माइनस 2c इक्वल्स 0। ऐड कर देता हूँ, आई विल गेट, ऐड करने से 3a प्लस 8a 11a माइनस 4b माइनस 8b इज इक्वल टू 0। 11a इज इक्वल टू 8b, a अपॉन b इज इक्वल टू 8 अपॉन 11। ऐसे ही हम बी और सी का रेशियो निकाल सकते हैं और फिर ए बी सी के रेशियो को कंपाउंड कर सकते हैं, बट आई स्टॉप राइट हियर बिकॉज एप्पल्स, बनानास और ऑरेंजेस मतलब ए बी और सी का रेशियो निकालना है, और मुझे पता है कि बी 11 का मल्टीपल होगा। बी 11 का मल्टीपल होगा मतलब सी नहीं हो सकता, बी डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए। बट आप चाहो तो चेक कर लो एंड यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर। कैसे चेक कर सकते हो? आप एक बार इन इक्वेशंस को ऐड करोगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट ऐड दीज टू इक्वेशंस वंस। आई गेट 3a minus 4b plus 2c equals 0 and 8a minus 4b minus 2c equals 0. I subtract the first equation and I get 8a minus 3a 5a minus 4b plus 4b 0 minus 2c minus 4c equals to 0. So I get a 5a is equal to 4c, a over c equals 4 over 5। a b c के रेशियो को कंबाइन करूं, a b c 8:11 4:5, आप इसको कंबाइन करोगे आपको मिलेगा 16
22, sorry, 8, 11, 10. 8, 11, 10 is the same ratio as 16:22:20. Answer option A. Brian and Sam are two brothers who work at a multinational company. The ratio of monthly incomes of Brian and Sam is 3:4 and ratio of monthly savings is 2:3. It is known that Brian spends 2/3 of his income each month. Brian, Sam, income, expenditure, saving. इनकम्स का रेशो क्या है 3:4, 3i 4i. सेविंग्स का रेशो क्या है 2:3, 2s 3s. और क्या पता है ब्रायन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हिज इनकम. अगर स्पेंड कर रहा है 2/3 मतलब सेव कर रहा है 1/3. सो 1/3 ऑफ ब्रायन का इनकम विच इज 3i इज इक्वल टू 2s. i इज इक्वल टू 2s. वो पुट कर देता हूं मैं. i इज इक्वल टू 2s मतलब 3i इज इक्वल टू 6s. 4i इज इक्वल टू 8s. 6s अर्न करता है, 2s स्पेंड सेव करता है मतलब 4s स्पेंड करता है एंड 8s में से 3s सेव करता है मतलब 5s स्पेंड करता है. रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर्स 4:5. आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Given 10 distinct numbers a b c d e s t x y z such that blah 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 blah, you know how to do this. सबको is equal to k मान लो और उसको पुट कर दो रेशियोस में, राइट. तो s इज इक्वल टू ए के आ जाएगा, t इज इक्वल टू b के आ जाएगा, x इज इक्वल टू c के आ जाएगा. इन सबको इज इक्वल टू k मान लेता हूँ. आई गेट s इज इक्वल टू a के, t इज इक्वल टू b के, x इज इक्वल टू c के एंड सो ऑन. y इज इक्वल टू डी के, z इज इक्वल टू ई के. इसको पुट कर दो, कैंसिल हो जाएगा. you'll get एक वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी as हो जाएगा a स्क्वायर के माइनस b स्क्वायर के ओवर a प्लस बी इंटू ए के माइनस बी के. आई एम श्योर यू रिमेंबर सॉल्विंग समथिंग लाइक दिस जो हमने पहले कर लिया था. k कॉमन निकालोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा. लाइकवाइज ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये भी 1 और ये भी 1. So you'll get 1 plus 2 into 1 plus 3 into 1 plus 4 into 1 plus 5 into 1 which is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 which is 15. So correct answer option B 15. That's it. With this we have completed the discussion of exercise 3 of practice sheets of ratio proportion variation. If you have any doubt we can discuss it out now. Go through the entire videos and see you soon. Have a great day. Thank you all very much for being very patient.